ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਪ ਕਲਾਸਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਟੌਪਿਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ HRM ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਰਾਈਟਰਸ ਆਥਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਅਪਰੋਚਿਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫੇਮਸ ਬੁੱਕਸ ਨੇ। ਪਾਰਟ 2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾਰਟ 1 ਬਣਾਈ ਗਈ ਆ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਬਈ ਵਧੀਆ ਵੀਡੀਓ ਆ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਸਾਡਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਵੇਸਟ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਆਪਣਾ, ਦ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੋਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਥਿਊਰੀ ਗਿਵਨ ਬਾਈ। ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੋਸਟ ਥਿਊਰੀ ਆ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ? ਸੋ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਡੇਵਿਡ ਰਿਕਾਰਡੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ ਤੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਥਿਊਰੀ ਜਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੋਈ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਟੈਪ ਬਾਏ ਸਟੈਪ ਇੱਕ ਨੋਟਸ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰਸ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਪਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ UGC ਨੈਟ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਤੇ ਸਿਲੇਬਸ ਸੇਮ ਹੀ ਆ। ਸੋ ਪੁਰਾਣੇ ਲੈਕਚਰਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰਸ ਪਲੱਸ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ UGC 'ਚੋਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਊ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਨੂੰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਸ 'ਚੋਂ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੋਸਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਥਿਊਰੀ ਗਿਵਨ ਬਾय ਦ ਡੇਵਿਡ ਰਿਕਾਰਡੋ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੂ ਗੇਵ ਦ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਥਿਊਰੀ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ? ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ, ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੋਸਟ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਇਹ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ ਐਡਮ ਸਮਿਥ ਨੇ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ, ਥਿਊਰੀ ਆਫ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, A for absolute, A for advantage and A for Adam Smith. Next question, multi-commodity and multi-country trade model given by multi-commodity and multi-country trade model given by, right answer is Professor Samuelson. Professor Samuelson ने किहड़ा मॉडल दिता सी? multi-commodity and multi-country trade model. Next question, who given the opportunity cost theory? Opportunity cost theory किहने दित्ती सीगी? Right answer is Professor Gottfried Hebler ने। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਥਿਊਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ? opportunity cost theory। ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵ ਕੋਸਟ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਐਬਸੋਲੂਟ ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ opportunity cost ਥਿਊਰੀ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਥਿਊਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕੋ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਰਾਈਟਰਸ ਦੁਆਰਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਮੋਸਟ ਰਿਪੀਟਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ, 7 point ਪਲਾਨ ਐਕਸਪਲੇਨਡ ਬਾਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 7 point ਪਲਾਨ ਆ ਵੈਸੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਆ 7 point ਪਲਾਨ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਿਲੇਬਸ 'ਚ ਆਪਾਂ +1 +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਆਈ ਹੋਪ। ਇਹ HRM ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ। HRM ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ +2 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਹਿਊਮਨ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਵੇਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਕਿਹਨੇ 7 point ਪਲਾਨ ਮਤਲਬ 7 points ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਸਿਲੈਕਟ ਅ ਬੈਸਟ ਪਰਸਨ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਦ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਜ਼ਰ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਐਕਸਪਲੇਨ 7 point ਪਲਾਨਸ ਕਿਹਨੇ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਰਿਲੇਟਡ ਟੂ ਦ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਮੇਕਅਪ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਅਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੀਆਂ ਅਚੀਵਮੈਂਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਕੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸੀ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ। ਨੈਕਸਟ ਵਨ ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ ਇਜ਼ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪਟੀਟਿਊਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਕੰਪਿਊਟਰ ਲਿਟਰੇਸੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਨਾ। ਦੈਨ 5th ਪੁਆਇੰਟ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਆ। ਸੋਸ਼ਲਿਸਟਿਕ ਕਿੰਨਾ ਵਾ, ਆਰਟਿਸਟ ਕਈ ਡਰਾਇੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬੜਾ ਵਾਰ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਫੀਲਡ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਕਿੰਨਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਡਿਸਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸਟੈਡਨੈਸ ਆ, ਮਤਲਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਸੈਲਫ ਰਿਲਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਲਾਸਟ ਵਨ ਇਜ਼ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਓਕੂਪੇਸ਼ਨਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਆ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਹਦੇ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਜ਼ਰ ਨੇ
कि जे आप एक बेस्ट पर्सन सिलेक्ट करना तो आपां नूं ये चीज़ां दा ध्यान रखना चाहिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑफर कर्व गिवन बाय, ऑफर कर्व किने दित्ती सी, ऑफर कर्व इज गिवन बाय मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। एक गल ध्यान रखियो, एक कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी भी हैगी इकल्ली, वो किसी राइटर ने लिख के दी सी, बट इत्थे आपां गल कर रहे हैं कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एक्सप्रैस इन द टर्म्स ऑफ मनी गिवन बाय, सो ये दित्ती सी डेविड रिकार्डो ने। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, डेविड रिकार्डो ने कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड वर्ड याद रखियो, जिथे कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड दिता वो डेविड रिकार्डो ने डिफाइन किया। नैक्सट हावथॉर्न एक्सपेरिमेंट इज रिलेटेड टू सिस्टम थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, ह्यूमन रिलेशन थ्योरी एंड साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी। कहते एक्सपेरीमेंट किने दिता सी, सो राइट आंसर इज एक थ्योरी के अंडर आता, किस चीज़ रिलेट करता, सो राइट आंसर इज ह्यूमन रिलेशनस थ्योरी के अंदर। नैक्सट क्वेश्चन विच इज़ द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। जे तुसीं पार्ट 1 चंगी तरह देखा होगा तो उस वीडियो के अंदर भी इस रिलेटेड क्वेश्चन आया सीगा कि जी मिलटरी है, जे तुहानूं क्वेश्चन याद आ गया होगा तो मिलटरी टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किहड़ी सीगी, सो उहदा आंसर की सीगा लाइन ऑर्गेनाइजेशन। तो इत्थे पूछा गया कि सब तो पुरानी तो सब तो ओल्डेस्ट, सब तो पुरानी तो सब तो सिंपल फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किहड़ी आ, सो राइट आंसर इज लाइन ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर, आई होप। नैक्सट हू गेव द ERG थ्योरी, ERG थ्योरी किने दित्ती सी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आ। मोटिवेशनल थ्योरी सारी इंपॉर्टेंट, मैं तुहानूं पहले ही दस चुका कि ERG थ्योरी किन्ना डील करती है, मोटिवेशन आ। सो मोटिवेशन थ्योरी सारी इंपॉर्टेंट ने, चाहे हैरकिन मास्लो की थ्योरी आ। सो ERG थ्योरी आपां नूं किने दित्ती सी, क्लेटन एल्डफर ने दित्ती सीगी। ERG, E फॉर एग्जिस्टेंस, R फॉर रिलेटेडनेस एंड G फॉर ग्रोथ। ये थ्योरी सीगी वो मोटिवेशन थ्योरी है, जिहदे विच दस्सिया गया कि इंडिविजुअल्स दे 3 स्टेजिस दे विच डिफाइन किया गया, 3 लैवल बनाए गए, एग्जिस्टेंस, रिलेटेडनेस एंड ग्रोथ। एग्जिस्टेंस के क्या गया कि वो परसनल मतलब बेसिक नीड्स पूरियां होने तक एग्जिट करूगा, दैन उन्होंने एक वधिया इन्वायरमेंट, रिलेटेडनेस मतलब एक वधिया सोशलिस्टिक इन्वायरमेंट चाहिए, दैन उन्होंने ग्रोथ भी चाहिए। नैक्सट द फेमस बुक द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट वाज रिटन बाय फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, सो राइट आंसर इज ओलिवर शेल्डन। ओलिवर शेल्डन ने किहड़ी बुक लिखी सी, फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट। नैक्सट क्वेश्चन सिस्टम डायनामिक अप्रोच गिवन बाय, सिस्टम डायनामिक अप्रोच गिवन बाय जे फॉरेस्टर। जे फॉरेस्टर ने किहड़ी अप्रोच दी सी, सिस्टम डायनामिक अप्रोच। नैक्सट क्वेश्चन हु इज द ऑथर ऑफ अ बुक सच एज पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। आई होप थोनों इसका आंसर याद हो गया होगा कि पर्सनल मैनेजमेंट एंड इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बारे ये किहड़े ऑथर ने लिखा सीगा, डेल यॉर्डन ने। ये अपना +1 +2 की बुक्स के आउंदा वा, आप बहुत बार पढ़िया होगा, पढ़ाया होगा, बट ये +1 +2 की बुक्स आउंदा वा कि यह बुक ऑथर किहड़े ऑथर ने दी सी, डेल यॉर्डन ने। नैक्सट हू प्रपोज द गोल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नैक्सट अगेन मोटिवेशनल थ्योरी या गोल थ्योरी ये किने दी सी, द राइट आंसर इज एडमिन लोके ने दी सी द गोल थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। नैक्सट क्वेश्चन Z थ्योरी, थ्योरी Z या Z थ्योरी वाज डेवलप बाय, ये 2-3 थ्योरीज ने, XY थ्योरी आ ते थ्योरी Z आ। इत्थे आपां गल कर रहे हैं Z थ्योरी किने दी सी, सो राइट आंसर इज, आई होप थोड़े दिमाग दे विच घूमन लग गए, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस ने। Z थ्योरी वाज गिवन बाय या डेवलप्ड बाय विलियम ओचिन। नैक्सट ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी डेवलप्ड बाय, कहते ब्यूरोक्रेटिक मैनेजमेंट थ्योरी किने डेवलप की सी, राइट आंसर इज मैक्स वेबलर ने ये थ्योरी डेवलप की सीगी। नैक्सट क्वेश्चन ये कुछ एक थोड़े स्क्रीन के उपर तुहानूं दिख रहा होगा कि जनरल मैनेजमेंट थ्योरीज किहड़ी दित्तियां सीगीआं, ये कंबाइन करके नैट तो ईजीली अवेलेबल हो जूगी पिक भी थोनों, अदरवाइज असीं कोशिश की कि थोनों इस अपने टॉपिक के अंदर डील करें, सो इनू लिया जाए, जिमें कि F टेलर के द्वारा थ्योरी ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट लिया गया सीगा, जिहदे विच टाइम एंड मोशन थ्योरी नूं एक्सप्लेन किया गया सी, टाइम एंड मोशन थ्योरी नूं स्टडी किया गया सीगा। ते होर इहने किहड़ा एक्सप्लेन किया सी, डिफरेंशियल पीस रेट प्लान, ये किहने कीता सी, F टेलर ने। नैक्सट हैनरी फ्योल दे किहड़े-किहड़े अचीवमेंट्स ने या उन्होंने आपां नूं
बिजनेस के अंदर की दिता वा एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी दी है 14 प्रिंसीपल दिते ने प्लस वो अंदर की आ रहा प्लैनिंग ऑर्गेनाइजिंग कमांडिंग कोआर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग ये सारिया चीज़ा किने दित्तियां सी आपां नूं हैनरी फ्योल ने। नैक्सट वन मैक्स वेबलर ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी दे अंदर नाल इहने आपां नूं होर किहदे बारे डिफाइन किया डिवीजन ऑफ लेबर के बारे फॉर्मल स्ट्रक्चर दिता आपां नूं ऑर्गेनाइजेशन का प्लस इन्हें मैनेजमेंट बाय रूल्स यदी भी गल की है। लास्ट वन एल्टन मायो सो ए बिहेवियर थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट साइकोलॉजिकल स्टिमुलस एंड बैटर वर्किंग इन्वायरमेंट के बारे किने गल की सी एल्टन मायो ने। नैक्सट क्वेश्चन आई होप तुसीं इसदा स्क्रीनशॉट लैके रख लोगे ये मोस्ट रिपीटेड है एक वधिया तरीके दे नाल नोट्स तुहाडे लई प्रोवाइड करवाए गए हैं सो इन्हां जरूर नोट डाउन करो ये तुहाडे लई बहुत हैल्पफुल होणगे। नैक्सट ESOP स्टैंड्स फॉर ये भी पुराने ही क्वेश्चन पेपर चो लिया गया। ESOP स्टैंड्स फॉर एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान या एम्प्लॉई शेयर ओनरशिप प्लान एम्प्लॉई स्टॉक ओनरशिप प्लान एम्प्लॉय शेयर ओनरशिप प्लान। एक बार सोच के देखो कि आंसर होगा। राइट आंसर इज एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान ESOP एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। नैक्सट आप हुणी Z थ्योरी के बारे पढ़िया सीगा हू प्रपोज थ्योरी X एंड थ्योरी Y कहते ये थ्योरी किने दी सी फ्रेडरिक हसबर्ग ने या डेविड मैकक्लेलन ने या डगलस मैकजॉर्जर ने या अब्राहम मास्लो ने। सो राइट आंसर इज डगलस मैकजॉर्ज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन who has given the red hot stove wool a right answer is Douglas MacGeorge. last question is CRM stands for the right answer is सोच के देखो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैरियर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कैपिटल रिलेशनशिप मैनेजमेंट या केयर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। सो राइट आंसर की होगा राइट आंसर इज कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। दिस इज एंड ऑफ आवर वीडियो। आई होप थोनों वीडियो पसंद और इसे तरह के 2-3 पार्ट्स होर लैके आवांगे जिहदे इंटरनेशनल थ्योरीज की या ट्रेड बारे जिन्नियां भी अपनी थ्योरीज ने या जिहड़े भी ऑथर राइटर्स ने जिन्होंने ਆਪਾਂ ਨੂੰ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिते ने जो अपने एग्जाम्स के अंदर सो वो भी थोनों प्रोवाइड करवाए जाएंगे। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लैस यू ऑल।